So a warm welcome, everyone. This is a topic that I'm sure, many of you can resonate, that our child doesn't speak too much. Our child is not social. Our child doesn't make friends. So, these are topics that bother so many of us. And we all look for solutions. We think that, yes, if we can get some solutions for these little small issues that is in our mind, but that's not the main issue of our life. But yes, a solution is always a welcome. And I'm super excited about this session tonight. My name is Divya, and this is a little platform that we have created, all of us together who have been part of Radio Diva. We together have created, we started it as a venture so that people can vent out a platform on Zoom during lockdown time. But eventually it became a platform, where experts started coming from variety of fields, especially mental health, because we believe that if you're mentally uplifted, बाकी सब तो हम कर लेंगे. यहाँ से अगर सही हो गए तो बाकी तो दुनिया, कहते हैं ना, मन को जीता जग को जीता. So we are, what we are targeting is हम अपने मन को समझ सके और उसको जीत सके. So join us and share your wisdom with us, your life lessons with us, and let's together grow this happy-go-lucky community which is already growing. Follow us on Facebook and Insta by the name of Radio Diva, and do subscribe to the YouTube channel by the same name. We need to reach out to more and more people, especially those people who are looking for answers. यानी जो सोचो कोई पेरेंट वहां परेशान हो और उसको वो आंसर आज मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात है. So let's reach out to and share it with maximum number of people. And I am super excited about this topic because the speaker today, when I had a conversation with her, she mentioned that, Kedavya, I'm not just talking from my books or from my learning or my training. I'm going to speak as a mother because I have lived through it. And this is something that made me, I was I was very much touched by it. And this is something that made me, yes, let's go ahead. So, talking about Anubha, she is a PCC certified coach by International Coach Federation and a licensed master practitioner of Richard Bandler Neuro Life programming techniques. She is an emotional intelligence and values coach. She helps midlife women to reclaim and rediscover their strengths. She is passionate about helping parents, and especially of introverted teens. And yes, she is a she there are lots of things that she has done. She is an NLP practitioner. She is into so many other modalities, but she is a mother who has lived through it, and it was beautiful just talking to her. And I'm all excited for the session tonight. So a warm welcome to everyone, and a warm welcome, Anubha. Such an honor to have you with us. Thank you so much. Thank you so much, Divya, for such a beautiful and elaborate, I must say, introduction. Thank you so much. And thank you so much for having me here. These are the conversations that totally energize me. And these are such nurturing conversations. And, I heard Akanksha when she was introducing herself that she is not a parent, but she's here. And I'm sure she will also learn. If she identifies herself as an introvert, she will learn something about how introverts are, some self-awareness will be increased, or if there are friends who are introverts and when they become a parent. Then so for me it has been a journey, and I'm so happy being on this platform, Radio Diva. And thank you so much for playing my song. Anybody who knows me knows that I'm a big Shah Rukh Khan fan. So yeah, thanks, Divya. Divya, you're on mute. Yeah, you're most welcome, Anubha. I also enjoyed the song for a change. It was beautiful. Acha, before we, start the session, Jaya ji has mentioned the group link and the YouTube link. I'll really request many of your friends and who are parents who might not be able to attend the session tonight. Please forward it to them. It's a good cause. It's you should share right kind of awareness, because now it's coming from a mother who has experienced it.
So I will request, please forward the link and of course subscribe to it. We need more people so that, people think it's an authentic channel, and, I can't do it alone. I will definitely need your help in it. So please be part of it. And yes, Anubhav, before, you share the learnings and share the tips and all those things, I would really like to know about your story. What is your story? How it all started? Will you like to share it with us? Thank you so much for inviting me to share my story, Divya. And in fact, the story is the session. So I am not going to, like sit and give these other tips. Agar ye karoge to, your life will be sorted or whatever. But if you hear the story, there is, and you take something from the story in itself, like I did, I think that will be enlightening in and of itself. So my question, सबसे पहले my question is to everybody: are we here to learn? And you can write on the chat box. If you're here to learn, just write yes or why or whatever. Yes, 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 yes. Everybody saying yes. Radha, Kirti, Monica, Harita, Jaya, Akanksha, Divya. Oh my God, so many yes. अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो गया, because you know what? We are here to unlearn and not learn. So please, all those yeses turn into no's and be ready to unlearn what you have learned earlier or what you think you're going to be learning here. So we are here to unlearn. So yeah, so मेरी कहानी, दिव्या ने मुझसे पूछा कि what is my story? So my story is that I have a child. He's not a child anymore. He's an adult. He's 20 years old, and now he's studying in Canada. And 20 years ago when I had him, I used to, even as a small baby, मतलब जब बिल्कुल छोटा सा था, तो भी उसको अगर मैं कहीं बाहर लेके जाती थी ना, तो वो रोने लग जाता था. And अगर उसको, if there was a party around, loud noises and everything, he never used to enjoy it. बिल्कुल उसको मजा नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. एंड कई बारी ऐसा होता था, मुझे बहुत टेंशन होती थी, जैसे हर एक पेरेंट को होती है कि अरे हमारा बच्चा बात नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा बाहर नहीं जा रहा है. बात तो करना शुरू भी नहीं किया था उसने, तब से ही उसकी पर्सनालिटी में ऐसा था कि वो रोता था. तो मुझे बड़ी चिंता सी होती थी, और लोग भी मुझे बोलते थे, सारा टाइम पूछते रहते थे, ये रोता क्यों है, ये खुश क्यों नहीं रहता, ये लोगों से बात क्यों नहीं करता, ये हेलो क्यों नहीं करता, हम इसके चीक्स ऐसे करते हैं तो इसको गुस्सा क्यों आता है. बहुत छोटा था वो, अभी कुछ भी ज्वाइन भी नहीं किया था. फिर हमने प्री नर्सरी ज्वाइन किया जब, तो वहां पे भी यही था. Everybody used to be in the class, and me and Arnav is his name. Me and Arnav used to sit outside and just wait out कि class शुरू हो रही है, class खत्म हो रही है. Both of us used to just quietly sit outside, and he was not participating at all. And the best thing, he used to come back home. मैं रो पड़ती थी. I used to cry कि I don't know what's wrong. Why is he not attending? What is happening and all of that. But he used to come back home, and the most surprising thing that used to happen was that he used to come back and tell me everything. That he spotted, a duck. There was a little animal farm over there, so he spotted a little duck, or he did this or he did this, and he used to play outside with me in that sand pit. तो मैं बहुत हैरानी होती थी कि like what is even happening. I never knew. Eventually we grew up a little. We started going to birthday parties. It used to be a trauma for him. Everybody used to ask me, why is he not playing? खेलता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, आज इसका मूड खराब है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है ये. एंड मुझे ये सारे सवाल बहुत परेशान करते थे, बिकॉज obviously, right, like a new mother, a new parent, no training in parenting, कुछ भी ट्रेन नहीं किया हुआ था. सारा टाइम लगता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ. एंड देन he started growing up. Eventually मैंने क्या किया, मुझे लोग बोलते थे, बहुत सलाह जो मिलती है सबको, वो मुझे ये मिलती थी कि आप इसको और लेके जाओ, इसको बाहर और लेके जाओ, क्योंकि ये जितना जाएगा बाहर ये उतना खुलेगा. मैंने थोड़े टाइम के लिए वो सलाह को माना,
और मैंने उसमें ये नोटिस किया कि मैं उसको लेके जाती हूँ, वो रोता है, वो मेरे पास बैठा रहता है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, और मैं घर आके रोती हूँ कि ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि ये बात नहीं करता, मुझे बहुत फिक्र है, और ये और वो, मतलब मुझे ना ये सारे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है कि घर का माहौल नर्चरिंग या खुशहाल नहीं था, कुछ भी ऐसी एक्सटर्नल चीज नहीं थी जिसको हम नर्चर के अंदर डिवाइड कर सकें कि वो उसको नहीं मिल रही थी। और वो बहुत इंटेलिजेंट था, जो सारी क्लास में अगर किसी को आंसर नहीं पता होता था, वो अर्नव को पता होता था। अर्नव घर आके मुझे इतना रोना करके, घर आने के बाद ही यूज्ड टू टेल मी हु वाज वेयरिंग व्हाट, एंड आई यूज्ड टू बी सो फुल, मुझे इतना टेंशन हो रहा होता था कि ये इतनी सारी बातें मुझे बता रहा है, लेकिन मैंने तो ये नोट ही नहीं किया, और ये नोट भी करके आ गया। सो ऐसी कई सारी चीजें हुई, एंड देन फर्स्ट लेसन जो मैं इस सेशन का आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि एक बार हम पार्क में बैठे हुए थे, और ये खेल नहीं रहा था, एंड लाइक ऑलवेज मैंने पार्टीज में जाना तो बंद कर दिया, लेकिन पार्क में मैं उसको लेके जाती थी, एंड वहां बच्चे खेल रहे थे बहुत सारे, 6 साल का होगा शायद। मैंने उसको बोला, मैंने कहा, अर्णव, आप मुझे एक बात बताओ, आज आपको क्यों नहीं अच्छा लगता बाहर जाके? देखो वो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो स्लाइड पे चढ़ रहे हैं, मुझे देख के मजा आ रहा है, आप क्यों नहीं एंजॉय करते वैसे? तो उसने मुझसे एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा। उसने मुझसे बोला, मम्मा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एंजॉय नहीं करता, मैं यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं और आप और मैं बुक पढ़ के एंजॉय करता हूँ, लेकिन अगर आप उन बच्चों को बोलोगे कि आप यहाँ बैठ के एंजॉय करो, आपको क्या लगता है उनके लिए क्या वो एंजॉयमेंट होगी? दैट दैट कंप्लीटली स्टेड विद मी, एंड दैट हिट मी लाइक, घर आके जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किया, तो इट हिट मी लाइक such a huge epiphany. He is so right. If I am made to sit in a corner, will I enjoy it? No. But he's happy. He's enjoying. There is nothing for me to fix. He is who he is. And all I need to do is unconditionally and totally just accept him. Right? और वही मुझसे नहीं हो रहा था। फर्स्ट लेसन कि मैं सोचती थी माई चाइल्ड इज अ मिनी मी। नो, ही इज नॉट अ मिनी एनीवन, ही इज जस्ट हिम। एंड हम बोलते भी हैं, हमारी लैंग्वेज में भी सुनाई देता है, oh my baby is a mini me, and then suddenly the baby is behaving so differently, and you think, अरे ये कहाँ से आया है इसमें, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। So this is the story of an extroverted mom, which is me, and introverted child, which is Arnav. And eventually, when I understood that this is his nature and this is who he is, I stopped trying to fix him. I stopped trying to change him. And I just totally and completely started. This was a start. This was not an arrival or a destination. I started knowing and learning more about him. And I know a lot of us, like at least 1/3, in the world, people identify as introverts. And they are the people who are most unheard, because they are the quiet people in this loud world. So here I am and my story. छोटे से सवाल का इतना लंबा जवाब, दिव्या। You explained it, you shared it so beautifully, Anubha, that, I'm sure so many of the mothers could have related to it. And yes, I mean, a child is unique in his own way, and he need not be a mini anyone. I mean, celebrating an individual's uniqueness is so beautiful. Yes, Harita, you have a question. Please go ahead. Kirti also has a question. So anyone who has a question, just like Kirti, anyone else can take up the question. Just a minute, I've just got a call.
हाँ, Kirti, go ahead. Please ask your question. Hi, yeah. So it was beautiful to hear about that, Anupa, and I agree to that. Every child is different; they are unique, and we, as a mother or father, we accept it, wholeheartedly. My question is, it's good that he's happy sitting alone, reading book or this thing, but the world becomes difficult for these kids, if they are not speaking out, other people dominate them in the school bus, in the school, or how to, and that's our worry as a parent. It's not that we want to improve or fix our child, but we want them to be prepared for the world. How to do that? Then that's my concern here, actually. I think that is that is the concern of each one of us who is parenting this beautiful introvert, right? So this is the concern that even I have till date, that how will he survive in the corporate culture? How will he, so when he went to Canada, how will he survive over there? But he has. How will he survive? My first question was, how will he ever get into the, and I see Sapna here has joined this conversation, and she's, she was there when I was going through it. My concern, the biggest concern at that time was, how will Arnav ever enter the class? He entered. Then my biggest concern was, how will he do the nursery interview? He did it. देन माई बिगेस्ट कंसर्न वो ये क्लास में नहीं बोलता. मुझे पीटीए में मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता था टीचर से कि मैम ये क्लास में नहीं बोलता है, बाकी एकेडमिक्स के लिए तो ठीक है, मेरे को कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट डज ही स्पीक इन द क्लास? बट ही डज. And it's not like he's a chatterbox. It's not like he's loud. It's not like he is not intelligent. He is all of those things and he's happy. जब हम बोलते हैं, और ये बात मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड कराती हूँ, और मुझे अभी एक बहुत और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी. बार बार रिमाइंड कराती हूँ मैं कि अगर वो किताब पढ़ रहा है, वो खुश है. एज अ पेरेंट, व्हाट इज माई बिगेस्ट डिजायर? माई बिगेस्ट डिजायर इज, हम बोलते हैं, लेकिन आर वी इवन लिविंग दैट वैल्यू? इज दैट माई चाइल्ड शुड बी हैप्पी, माई चाइल्ड शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. So by pushing him into places or spaces that he's not feeling energized into. Your network is a bit issue. I think it's getting disconnected. एक बार check कर लो ना network अपना. मेरा? हाँ. अच्छा. उस पे तो full दिखा रहा है मुझे. Are you now able to see me? Let me just switch on to 5G. एक second. Yeah, we'll hold. So किसी ने रिक्वेस्ट भी किया है कि they want the question in अगर हिंदी में हम बोल सके तो let's use more of Hindi, Anubhav, so that because everyone will understand if we talk in Hindi. अगर ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के आंसर्स नहीं हो, तो हम ज्यादा हिंदी में अब Is it better now? Can you hear me? Yes, Anubhav, we can hear you. रिक्वेस्ट आई है हिंदी में अगर हम ज्यादा बात कर सके तो. बिल्कुल कर सकते हैं. तो अगर मेरे नेटवर्क में, नहीं, आपने बहुत अच्छी, आई थिंक आपने नेटवर्क फिक्स कर लिया, राइट? यू हैव फिक्स्ड इट. मैंने फिक्स कर लिया, मगर अगर फिर भी इशू आएगा तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगी. ठीक है. वी वांट टू लुक एट योर जॉली, एज जया जी ने मेंशन किया, आपके जॉली फेस को हमें देखना है, तो प्लीज वीडियो ऑफ नहीं कीजिए. Okay, and what, something very important that you were saying कि हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, हम वो भूल चुके हैं. प्लीज कंप्लीट दैट. वो नेटवर्क चला गया था उस समय. तो मैं ये कह रही हूँ कि हम बोलते हैं सारे लोग कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, आजीवन खुश रहे. क्या चाहते हो? अगर आप पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से, दिव्या, अगर आप ये सवाल करो कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, उनका क्या पहला जवाब आएगा? वो एक अच्छा इंसान बने और वो हमेशा खुश रहे. I totally agree with you because मैंने अपनी डॉटर को लिटरली ये क्लियर बोला है. There are 3 things that I want from you: stay happy, stay healthy, and stay humble. 3H. That's what I have called it. These are the 3H जो मैं आपसे चाहती हूँ. बाकी आप अपने लाइफ और करियर में जो करो
उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उसके रिजल्ट्स आपके, उसके रिपरकशंस आपके। है ना? हाँ, पर क्या हम इसको लिव करते हैं कंप्लीटली एंड फुली? मैं बहुत कोशिश करती हूँ अनु, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। इट इज अ I mean, कोशिश। हाँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दिव्या, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी पेरेंट, बिकॉज हम सबके लिए कोशिश है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, इट इज ओके, दे विल फाइंड अ वे। राइट, वी नीड क्वाइट पीपल। जब हम इनफैक्ट हम लेसन नंबर 2 of this session is that हम जो इंट्रोवर्ट्स को देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंट्रोवर्ट को कैसे देखते हो, व्हाट डू यू थिंक इज एन इंट्रोवर्ट, हु डू यू थिंक इज एन इंट्रोवर्ट, तो क्या जवाब देंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि जब मैं इंट्रोवर्ट बोलती हूँ तो आपके दिमाग में जो पर्सनालिटी आती है वो क्या आती है। प्लीज चैट में आंसर दीजिए, अदरवाइज जस्ट अपना माइक खोल के भी आप आंसर दे सकते हो। Intelligent, happy, okay, the one who doesn't share, good listener, quiet person, speaks when necessary, nervous, scared, one who keeps to self, not outgoing, quite a good listener and good learner. Okay, ये मेरा डर है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा, मेरा बच्चा वो, पर क्या वो एक्चुअली नहीं कर पा रहा? वो गलत है, क्योंकि वो सब कुछ कर रहा था ना। वो क्लास 1 में भी था, वो क्लास 2 में भी था। आज की डेट में मैं बता रही थी ना, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। मैं जब वो जाने वाला था ना एक दूसरे देश में पढ़ने के लिए, आप सोचो एक बच्चा जो बात नहीं करता, पार्टी नहीं करता, बाहर नहीं निकलता, वो दूसरे देश में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए अकेले, पैंडेमिक के दौरान में। मैंने यूनिवर्सिटी की फेसबुक पे, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे जाकर के एक मदर ढूंढी जो जिनका बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था वहां पे, और मैंने कोशिश किया कि मैं उन दोनों को फिक्स करूं कि ये आपस में बात कर लें। तो मेरे बेटे ने मुझे आके बोला, मम्मा आप अभी भी मेरे लिए प्ले डेट ढूंढ रहे हो? एंड इट वाज लाइक, ओ माय गॉड, इतना जर्नी करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मैं वहीं पर कैसे आ गई वापस से? एंड मैं वहां पर नहीं आ, तो वहां पर नहीं आता इंसान, थोड़ा ऊंचा जाता है, थोड़ा पीछे आता है, इट्स स्पाइरल। आप ये भी जर्नी थी। अब मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो घबराहट किसकी थी? मेरी थी। और मैं क्या कर रही थी? मैं अपनी घबराहट को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही थी, मैं अपनी फियर को उसके ऊपर चढ़ा रही थी। इनफैक्ट मुझे उस टाइम पे सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत थी, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस कोच थी उस टाइम पे, पर वो एक माँ का डर था। तो ये हम माओ का डर है। ये जो क्वेश्चन आया था, ये हमारा डर है, ये हमारे बच्चे की रियलिटी नहीं है। so, परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक ना, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये हमारा डर है, और कहीं ना कहीं हम अगर अपने डर को जीतेंगे तो बच्चा तो अपना सब कुछ सही कर लेगा। और जया जी, आपने सही कहा, शांत सा मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, other parents have also raised their hand. Akanksha, do you want to share what your concern is? And Rutshrit, yeah, रुतिश्र, Rutishrit, I'm so sorry, I'm like spelling it. Yeah, Rutishrit. Yeah. Hi everyone. Hello. मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये टॉपिक में जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुए देखा, तो मैंने सोचा कि कहीं पर तो मुझे जवाब मिलेगी करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। मुझे बहुत ही पसंद है। पहली बार मैं एक्चुअली ऑनलाइन ज्वाइन किए हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आई डोंट नो हाउ टू पुट अक्रॉस। मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वे हैं, दोनों लड़कियां हैं। एक एकदम बहुत सोशल है, दूसरी बेटी एकदम शांत है, किसी से बात नहीं करती है, ना खेलने जाती है, और अपने आप में मगन रहती है। मतलब वो पढ़ाई में भी, इवन स्कूल में भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती है।
अभी जस्ट नाउ 9 years, बट मुझे इतना डर लगता है कि आजकल के जमाने में बिना बात के जीवन गुजारा नहीं जाता, इतना मुश्किल है, वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट इज। होपफुली आई एम करेक्ट, आई डोंट नो, पर माँ की नजर से देखेंगे तो दोनों बच्चे में बाकी लोग, बाहर के लोग जब देखते हैं उनमें ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों में एक बेटी बहुत बबली रहती है, बात ज्यादा करती है, तो उससे ज्यादा बात करने लगते हैं उसको। हाउ डू आई टेल, दे स्टार्ट प्रेजिंग हर, द हाँ, अदर किड विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जैसे पेरेंट्स भी बायस्ड हो जाते हैं कई बार कि जो बच्चा बात कर रहा है या बोल रहा है अच्छे से, उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। हाँ, वो भी है। मुझे ये खाई जा रही है कि कैसे करूं मैं उसको, कैसे बात करूं, करने के लिए बोलूं। वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वेरी कॉम्पिटिटिव नाउअडेज। जो हमने पढ़ाई की थी तब जमाना अलग है, आजकल के जमाने में ये these gadgets and I mean these world, it's very difficult. If the kid doesn't speak, doesn't mingle with others, how will he come to know what is going on around? How will she face it? अगर मैं स्कूल बच्चा जाती है तो दोनों, I mean, I have purposely put them into two different sections because I want them to develop their own individuality. नहीं तो नहीं, आगे नहीं पढ़ पाएंगे मेरे हिसाब से। So I have come here to find out whether will I get any solution, because my kid is still, I mean, my kids are 9 years now. तो मैं ज्यादा उसके ऊपर मैं बोलती रहती हूँ, नहीं तुम्हें बात करना चाहिए, कॉन्फिडेंस हो। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है। और बाकी मदर्स भी रिलेट कर पाएंगे। यस अनुभा, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? थैंक यू सो मच रुतिश्वेत फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू। यस A big, अनुभा, प्लीज a गो big warm hug, right? A virtual hug to you, Rutishrit. Very Wow. valid question, very valid fears. थैंक यू। और एक सीक्रेट बताती हूँ, वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गांधी जी, राजीव गांधी, and many more. What is common? They are all introverts. They are all introverts. कोई पीछे नहीं रह के जाएगा, जिनकी जो लाइट है वो शाइन करेगी करेगी। और जब आपने अपना क्वेश्चन शुरू किया था, आपने बोला था ये मेरा फियर है, और हम इस बारे में बात कर रहे हैं हमने कि ये हमारा फियर है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। और जब हम इस टॉपिक के थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शाइनेस एंड इंट्रोवर्टिज्म. An extrovert person can be shy and an introvert person can be a great public speaker. अगर मैं वापस अपने बेटे के ऊपर आऊं और उसी का ही एग्जाम्पल देके तो बोलूं, he is a very good speaker. इनफैक्ट पूरे स्कूल में जिस तरह से वो संस्कृत श्लोक की डिलीवरी करता था, nobody used to do it. Principal used to come on stage and applaud his delivery. He still is a packet full of surprises. मतलब मैं हर बारी चौंकते रहती हूँ, मुझे लगता है ओह ये कैसे हैंडल करेगा, और वो जाके वहां विन करके आ जाता है। क्योंकि वो शायद ऐसे नहीं है कि उसको जहां बोलना है वो बोलता है और जहां नहीं बोलना वो नहीं बोलता। वो उसको स्मॉल कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगती है। तो इंट्रोवर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि वो शाय ही होंगे। आप ये सुन के भी बहुत हैरान होंगे कि मैं जो आज आप सबके सामने बोल रही हूँ, एक समय ऐसे था
कि मेरे को फोन पे किसी के साथ बात करनी होती थी तो मैं दूसरे रूम में जाके बात करती थी, कि मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में, कि मेरे ऑफिस में मेरे आसपास वाले ये ना सुन ले कि मैं बात कैसे कर रही हूँ. आई वॉज शाय एट दैट टाइम, and I still feel shy at a lot of places, even though I am a self-certified extrovert. बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, और मैं बहुत अजीब बात बताती हूँ. मेरी लाइफ का मिशन क्या है? Live, love, laugh loud. So actually, shyness and introvertism are completely two different things. So this is another lesson of this session. और जो बात हमने बीच में एक छोड़ दी थी, मैं वापस उसके ऊपर आना चाहती हूँ before we lose that and move forward, is that मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या सोचते हैं इंट्रोवर्ट हैं, और बहुत सारे आंसर्स आए हैं उसके, और उसमें से जो स्टैंड आउट करते हैं वो ये है कि दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट डूइंग दिस. मैं पढ़ के ही बताती हूँ, ये मेरा डर है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा, मेरा बच्चा वो, पर क्या वो एक्चुअली नहीं कर पा रहा? वो गलत है. So you have to see your child as your child is, not as how you want the child to be. And again, Divya, मैं दोबारा से बोलती हूँ, introvertism is not a condition to be changed. All you can do is provide them with a safe space, जहाँ पे वो, जब दुनिया नहीं बात उनकी सुन रही, या जब वो बोलना नहीं चाहते दुनिया को, तो वो कम से कम एज अ पेरेंट आपने इतना प्रोवाइड किया हुआ है उनको सेफ स्पेस, कि वो कम से कम आपके ऊपर आके बोल सकते हैं. कम से कम आप तो मत जज करो. दैट इज द गिफ्ट. यू आर राइट, योर प्रेजेंस इज योर बिगेस्ट प्रेजेंट. जस्ट बी प्रेजेंट विद देम, थिंकिंग दैट यू डोंट हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका केयरे नहीं है उनको बदलना, आपका केयरे है उनको प्यार करना, उनसे प्यार से बात करना, और क्यूरियस रहना. अच्छा, तो तुम्हें बुक पढ़ के मजा आता है? वाह, मुझे तो पार्टी में जाके मजा आता है. तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि चलो हम बुक पार्टी करें? So call more friends at home and everybody reads a book. They will love it. Give them spaces. मेरा बेटा क्योंकि उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. बाय द वे, ऐसा नहीं होता कि इंट्रोवर्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलते. रॉजर फेडरर बाय द वे इज एन इंट्रोवर्ट, आइडेंटिफाइज एज एन इंट्रोवर्ट. स्पोर्ट खेलते हैं, और जब वो स्पोर्ट खेलने जाता था तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहते हो, तो उसने मुझे बोला कि वो टेनिस खेलना चाहता है, क्योंकि टेनिस में उसको इंटरैक्शन नहीं करनी है. क्रिकेट में उसको हडल भी करना है, इंटरैक्शन भी करनी है, टीम वर्क भी करना है, और बहुत सारा करना है. आज वो क्रिकेट खेल रहा है बिकॉज ही इज ओके विद इट नाउ. वो खुद से खेलना चाहता है. तो लेकिन पहले भी अगर आप उसको ओवर शेड्यूलिंग करने की भी एक हमारी पेरेंट्स की आदत होती है, ओवर शेड्यूल करते हैं हम उनको, बच्चों को, कोडिंग क्लास, आर्ट क्लास, डांस क्लास, ये योगा क्लास, फलाना क्लास, ऊपर से फिर ट्यूशन क्लास. तो जस्ट लिसन टू व्हाट you. Be the good listener in this relationship as well, if you want this relationship to be really prosperous. And don't try to change anybody. Try to bring the change within yourself that will be able to nurture this beautiful child that you have. And that is the biggest, I would say, the lesson of any session. Love, 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 total acceptance and connection. तो ABC of parenting, मैं यही कहती हूँ, ABC means radical, total acceptance and awareness of what is the nature of your child, which is so unique. हम सब बात कर रहे हैं हमारा बच्चा यूनिक है, हमारा बच्चा यूनिक है, हमारा बच्चा यूनिक है. वो मिनी मी नहीं है, तो हम उसको फिर अपने जैसा मत बनाएं. उसकी यूनिकनेस को ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत के साथ
प्यार के साथ। दूसरा आता है बी ऑफ पेरेंटिंग, बाउंड्रीज। जब तक वो आपके घर में रह रहे हैं, आपकी केयर के अंदर रह रहे हैं, कॉन्शियस या इमोशनल इंटेलिजेंस पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो परमिसिव पेरेंटिंग है। वो सिर्फ ये मतलब है कि वो कनेक्शन ड्रिवन है। आपको उनके साथ कनेक्शन बनाना है और उनके लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। आप अपने बच्चे को जाके नहीं बोल सकते अच्छा ठीक है तू ये करना चाहते हैं, मैं तो कॉन्शियस पेरेंट हूँ, कर ले। उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ इज अप टू यू। बाउंड्रीज बनाइए, एग्जाम्पल के साथ रहिए। और तीसरा सी है कनेक्शन। हम कोई भी काम कनेक्शन और कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। तो अपने बच्चे को कोरा पे आप जाओ अगर वहां पे इंट्रोवर्ट्स लिखते हैं, और कई बार मुझे बहुत दुख होता है दिव्या पढ़ के, ये तो चुप ही रहता है, इसको तो बात ही करना नहीं आता, क्या करेगा कुएं का मेंढक बन के, घर के अंदर पड़ा रहता है, बाहर निकलो, थोड़ी बाहर की दुनिया देखो। मेरे को पहले, मैं ये गिल्टी हूँ ये सब बोलने के, लेकिन आज की डेट में मुझे बहुत रोना आता है ये देख के। कई बार बहुत दुख होता है कि ओ माय गॉड, यू नो, this is 1/3 of our population that we are choosing not to see, and it is their nature, you cannot change it. And वो क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उनका ब्रेन ही डिफरेंटली वायर्ड है। पीपल हैव बीन, साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, स्टडीज में रिसर्च हो रही है, बड़ी बड़ी स्टडीज आ रही हैं, उनका ब्रेन डिफरेंट है। एक्सट्रोवर्ट्स का ब्रेन डिफरेंट है। जो चीजें एक्सट्रोवर्ट को स्टिम्युलेट करती हैं वो इंट्रोवर्ट को स्टिम्युलेट नहीं करती हैं। मेरे बेटे को अगर रेस्ट चाहिए, मुझको आफ्टर अ हार्ड डे पार्टी हार्ड चाहिए। तो मैं ये कैसे सोचूं कि जो मुझे चाहिए वही उसको चाहिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। So that is lesson number, I don't know which one, but this is a lesson that their brain and neurobiology is different and unique than the extrovert. Yeah, and I think, in our country, another thing is that कि हम अपने बच्चों पे अपनी पूरी, अपना पूरा जान लगा देते हैं कुछ ज्यादा ही कि ना वो उनको उनको ना उनकी 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 हैप्पीनेस वो साइड हो जाती है, एस्पिरेशंस कुछ और हो जाते हैं कि वो नाम रोशन करे, हम सोसाइटी का स्टेटस सिंबल हो जाते हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल उनका बिल्कुल। कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, कहाँ किस कौन से ऑफिस में जॉब मिल रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये नेचुरल है, इस चीज को कैसे हम, हाउ कैन वी डील विद दिस थॉट कि हमारे बच्चे जो जैसे हैं ठीक है, एज लॉन्ग एज वो हैप्पी हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो हैप्पी हेल्दी रहे। हाँ, तो हमको सिर्फ ये रिमाइंड करना है अपने आप को ना दिव्या, कि वो जो 3H हमने शुरू में बात करी थी सेशन के एकदम चालू होते ही, वो हमने यही बात करी थी, है ना। तो अगर हमारी इच्छा ये है अपने बच्चों के लिए, बाकी वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आजकल इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आप उनको गुड एजुकेशन दे रहे हो, गुड नर्चरिंग दे रहे हो, वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। अपने ऊपर भी तो विश्वास रखो और उनकी यूनिकनेस पे भी विश्वास रखो। कितने सारे लोग मैंने देखा IIT पढ़ के बाहर अमेरिका जाके वापस आके खेती कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको वो खेती ही करनी थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मे बी अजम्पशन कॉन्टेक्चुअल, मे बी वो उस टाइम पे नहीं देखा, या बच्चे में हिम्मत नहीं थी वो बोलने की। तो हमको बस ऐसा ही घर बनाना है जहाँ पे हमारे बच्चे आके सबसे पहले हमें बताएं, ना कि हमें दुनिया से पता चले कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है।
I agree. I totally agree with you. लेबलिंग एंड जजमेंट. मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, सो व्हाई लेबल? लेबल क्यों करना है कि वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट? किसी और को लेबल नहीं करना है. हमें समझने के लिए दूसरे आदमी को वो किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहा है वो समझना है. जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में हम करते हैं ना, यू लेबल योर इमोशंस करेक्टली. वो एक रीजन है क्यों करते हैं हम. लेबलिंग करते हैं ना समझने के लिए कि ये इमोशन मुझे क्या बताना चाह रहे हैं. अगर आप सैड हो और अगर आप अपने को डिप्रेस बोलोगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है. तो लेबल का क्या मतलब है, और एक्सट्रोवर्ट्स का मतलब ये और इंट्रोवर्ट्स का मतलब ये नहीं है. बीच में पूरा स्पेक्ट्रम है, यहां से लेके यहां तक पूरी एक लंबी लाइन है. आप कहीं भी हो सकते हो. आप किस साइड ज्यादा हो. मेरा बेटा जो है वो बहुत प्योर इंट्रोवर्ट है. तो आप किस साइड पे ज्यादा हो, और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो आप किस साइड पे ज्यादा हो. व्हाट इज योर natural self leaning towards? And like I always say, labels are important till they are not. एक टाइम आएगा, मेरी भी वही एस्पिरेशन है क्योंकि सबकी जर्नी है. एक टाइम आएगा जब मुझे किसी को इंट्रोवर्ट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को एक्सट्रोवर्ट समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी रेडिकल एक्सेप्टेंस होगी कि वो जो है वो ठीक है. मुझे उसको सुधारना नहीं है, मुझे उसको बदलना नहीं है, ना ही मुझे खुद को बदलना है. तो जब वो आ जाएगी तब लेबल इम्पोर्टेंट नहीं होगा. लेकिन जब तक वो नहीं आ रही है तब तक लेबल इम्पोर्टेंट है, सिर्फ तब तक. तो वी डोंट हैव टू रिमेन इन जजमेंट, बट वी हैव टू लेबल इट करेक्टली. ये धनिया है, ये पुदीना है. इतनी बड़ी बात आपने इतने प्यार से समझा दी. आई मीन हम इंडियंस को हर चीज के लिए, मैं उस दिन बच्चों को भी बोल रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का, रिमेम्बर मैंने कहा ना हम सब राय बहादुर होते हैं. सबके लिए कोई ना कोई राय बनाना हमारा ना, जैसे अपने बेडरूम में बैठे बैठे विराट को कैसे खेलना चाहिए हमारे पास उसके लिए भी आइडियाज होते हैं. आई मीन लाइक ना, क्यों नहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं. मैंने शायद मैंने जज नहीं किया पर एक्सेप्टेंस बहुत लाया एंड इट मेड मी अ पीसफुल पर्सन. आई एम मच मोर पीसफुल बिकॉज आई डोंट लेबल एनीवन. Amazing, so beautiful. Thank you for sharing that. तो खुद के लिए करना होता है ना. के लिए करना है, दूसरे को जज करने के लिए नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड सेल्फ अवेयरनेस इज द रूट टू एवरीथिंग. तो जब आपने अपने आप को समझ लिया तो मतलब आप एनलाइटन ही हो गए हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. So Sapna, do you have a question? I just felt so, when Devya was talking about herself, that she was a quiet child and वो शांत स्वभाव की थी and चुप रहती थी. It struck me, and Anubha, you won't believe this, and other friends who've known me as a talkative person now, that I was an introvert as a kid. I was shy, introvert, दोनों ही कह लो. And maybe अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं introvert थी, but some part of me even now, I think I'm non-social. So that's again me. So मैंने अपने आप को कभी realize ही नहीं किया कि I'm also an introvert. You see, but लगती नहीं हूँ. I don't look, I mean, it's like nobody has ever pointed it out or told me that. But ये मुझे अपने बारे में अब पता लगा. Just when Divya was talking, I said, oh my God, that has been me, and I just never recognized it. Absolutely, सपना. So अपने आप को जो अनुभा ने लास्ट में कहा ना कि बस एक ही इंसान पे काम करना है, अपने आप पे. और अपने आप पे जब हम काम करते हैं, हमारे रिश्ते, हमारे आसपास के लोग, सब में चेंजेस आना लगता है. सिर्फ एक इंसान पे काम करना है, अपने आप पे, अपने गुस्से पे, अपने रिएक्शंस पे, अपने रिस्पॉन्सेस पे, अपने एक्सेप्टेंस पे, अपनी खुशी पे, अपने सेल्फ लव पे,
अपने हर चीज पे काम करो बस, और आसपास सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दिस इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, and the only person you can change is the person you see in the mirror. This is one thing that I totally believe in. It is still one more step ki haan it is a reminder again and again. That's a reminder. My value as a parent is that my child is happy, healthy, and what was the third H? Humble. And how can I live this each day? Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Anubha, and thank you everyone for the beautiful session. And we come up with such sessions every Tuesday, so be part of our Happy Go Lucky community.